नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। नाउ आई कम टू सेक्शन 11। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी थी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ यू विल हैव टू आइडेंटिफाई हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। which section provides that who are the competent to contract? Who are competent to contract? It is prescribed by section 11 and very very important, very very important for you. See, every person is competent to contract. Oh my god, see the line. Every person is competent to contract. Even Shipra is competent to contract. Even Arshan is competent to contract. Every one of you is competent to contract according to this line. Second is what? Requirement. Who is of the age of majority? This is the requirement. जो भी कोई age of majority का होगा, that shall be competent to contract. Age of majority कैसे determine करेंगे? According to the law to which he is subject. जिस कानून के अधीन हैं आप, उस कानून के अनुसार when you will attain the age of majority, you will become competent to contract. Therefore, competency to contract is dependent upon the age of majority. सही है? And secondly, अब suppose every one of you is major now, so it means you are competent to contract. But no, you will have then again a check. Second is what? And who is of sound mind? Who is of sound mind? And who is the person sound mind? जिसके माइंड से साउंड आती हो, तो बताओ तुम में से कितने साउंड माइंड के हैं? किसी के माइंड से साउंड आती है? ये साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? सब समझते हैं, है ना? साउंड माइंड का मतलब क्या है बताइए? कोई है? एनीवन? सो these are the requirement. Number 1, you should have attained the age of majority. You should not be of unsound mind. It means you must be of sound mind. And third, not disqualified from contracting. This is third requirement. If you are disqualified from contracting, if you have been declared to be insolvent, you cannot contract now. So if you have been disqualified, so again you are not competent to contract. Otherwise what? So these are the major sound mind, and third, not disqualified. These are the 3 requirements to be the person competent to contract. So don't forget this. Section 11 talks about the who are competent to contract. According to this, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which is subject, and who is of sound mind, and who is not disqualified from contracting by any law to which is subject. Very simple. कुछ पूछना है यहाँ से अपने? सेक्शन 11 बताइए, हाँ या ना, जल्दी से बताइए. Now I am coming to the second question. Who is of sound mind? The person, this is who is sound mind, and this is very, अभी आवाज आएगी देखो ये. This is what is of sound mind for the purpose of contracting. What is the line? Please see it. देखो हो गया जादू. See the, please. Sound mind. Who is of sound mind? But basically for the purpose of contracting. So we will have to see in case of who is of the sound mind for the purpose of contracting. अब इसका मतलब क्या है? देखो क्या है. अरशान मियाँ की बात चल रही है. अरशान मियाँ से बात करिए. मान लीजिए कि अलग अलग पर्पजेस हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु इज ए गुड लॉ टीचर? सो मे बी रामलाल, चमनलाल. I may not be there in the list, but now the question is who is the good teacher for judicial services examinations? तो हो सकता है कुछ लोग मेरा नाम भी आ गए कि he is good for that purpose. So पर्पज के पॉइंट से देखा जाए कि for what purpose you are considering it. Here what we are discussing it, section 12 says sound mind for the purpose of contracting.
sound mind for the purpose of penal law, IPC may be different. A person of unsound mind may be different for the purpose of penal laws, and but here we are saying what purpose of contracting, and this is the section 12 heading or marginal note, and you will see the prelims question from here itself. So let's see who is of the sound mind for the purpose of contract. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम किस व्यक्ति को माने कि वो साउंड माइंड का है, उसके माइंड में साउंड आती रहती है। देखो क्या है, काश मैं यहाँ पर वीडियो दिखा पाता, क्या कर सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ टेक्निकल हमारे पास कुछ उतनी चीजें एडवांस नहीं है इसमें, ताकि वीडियो चल जाएगा लेकिन वो आपके पास उसका ऑडियो नहीं जा पाता, तो पर्पज नहीं हल नहीं हो पाता इसमें। चलिए ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं। A person is said to be of sound mind. A person is said to be of sound mind if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. ये समझिए क्या मतलब हुआ। देखिए, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract. क्या मतलब हुआ, इसको समझिए। इसको उन्होंने क्या अलग दिखाया क्या, हाँ बस ये होगा कि हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 कि किस व्यक्ति को ये माने कि दिस यंग मैन is of sound mind for the purpose of making the contract. So in that case you will see whether he is capable, क्या वो इतना समर्थ है, whether he is capable of what, understanding it, क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है, and of forming a rational judgment about as to its effect upon his interest. उसके हितों पर इसका क्या प्रभाव होगा, उसके हितों पर इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रभाव होगा, क्या उसके संबंध में वह कोई रेशनल जजमेंट ले पा रहे हैं। तो कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, नंबर 1 उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है कि एग्जैक्टली है क्या, कर क्या रहे हैं, ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है उसको। नंबर 2 इस ट्रांजैक्शन का उसके इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा ये उसको पता है। देन वी से he is the person of sound mind. He is the person. So what is the test for this determining that whether he is capable of understanding it, secondly whether he is capable of forming a rational judgment as to its effect on his interest, उसके अपने हितों पर उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में उसको पता है, वो सही निर्णय ले सकता है, तो उसे हम कहेंगे कि he is capable. If he is capable, he is of sound mind. किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछे अभी। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, चलिए समझाते हैं। मान लीजिए अरशान मियाँ के अब्बू जान और अम्मी जान बात कर रहे हैं कि भाई अब बच्चे की निकाह करवा देते हैं, सही है, बच्चे का निकाह करवा देते हैं। तो अब अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारा निकाह करवा दें हम, हाँ मम्मी करा दो, फिर हम दोनों बैठ के पढ़ा करेंगे, हम दोनों खेला करेंगे। अबे तुझे पता ही नहीं है क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये शादी होगी तुम्हें खेलने गुड्डे गुड़ियों के खेलते समझ रहे हो कि तू उसमें जा खेलने के लिए। इट मीन्स व्हाट, इवन ही इज एस्पायरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है अभी, ही इज नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, ट्रांजेक्शन को समझ में नहीं आ रहा है उसको। तो भले ही भाई साहब ने आईपीसी सीआरपीसी लेटर रखी हो, but he is not capable of understanding it. We are saying whether he was of sound mind for the purpose of contracting or not. So मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि it all depends upon the capability of understanding. उसकी समझ क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है वो, उसका उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके अपने हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी समझ है उसको। Then we say he is the person of sound mind. So this is all about this sound mind
नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब इसमें आते हैं, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, वेरी गुड, यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है, लगभग वो अनसाउंड माइंड का, ही डजंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन कभी कभी साउंड माइंड का भी हो जाता है। मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति भी जो लगभग पागल वाली स्थिति में रहता है, मीन्स अनसाउंड माइंड का है, लेकिन कभी कभी छुट्टियां लेता है, साउंड माइंड का भी होता है, तो उस छुट्टी के दिन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छुट्टी, मैं आपको समझा रहा हूं, डेली वर्किंग है, एक दिन छुट्टी बढ़ती है, तो उस दिन छुट्टी पे आप अपने घर के काम निपटा सकते हो। तो ऐसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति 6 के 6 दिन पागल रहता है, एक दिन वो समझदार हो जाता है, तो जिस दिन वो समझदार हो जाएगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये नहीं कि एक इंसान अगर अनसाउंड माइंड का है तो को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इट इज नॉट सो इट डिपेंड्स कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट वाज हिज स्टेट ऑफ माइंड, जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, वेदर ही वाज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट, क्या वो उसको समझने में सामर्थ्य रखता था या नहीं, इट डिपेंड्स। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक दिन सही हुआ, वो उसी दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कर डाला, नेक्स्ट डे फिर वैसे का वैसे ही हो गया, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ही वाज ऑफ साउंड माइंड। बोलिए हाँ है ना, है ना। सेकंड पॉइंट पर आइए, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक व्यक्ति जो यूजुअली साउंड माइंड का है, मतलब एकदम जेन्युइन, वेरी साउंड, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट गाय, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, भूल भलैया देख लेना विद्या बालन की, कि वो शी इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट समटाइम्स शी बिकम्स फ्यूरियस, अनसाउंड माइंड। When she is of unsound mind, she may not make a contract when she is of unsound mind. So it depends totally at the time of making contract whether the person was whether the person was sound mind or not at that time. So it doesn't matter कि आप usually sound mind के हैं या usually आप unsound mind के हैं. It is immaterial. What is material that at the time of making contract you were of sound mind. So जय श्री राम, इसका इलस्ट्रेशन है, आप खुद कर लीजिएगा. दिस इज सेक्शन 12. आगे बढ़े साहब. देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा. आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है. तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है. तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस. Thank you very much and share these videos. Thank you.